वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है द रेल ब्रिज विल चेंज कश्मीर फॉर एवर। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। History of 168 years, the Indian Railways is building the most challenging project mankind can ever imagine. Kashmir Railway, the Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link project, the most challenging project in the history of Indian Railways. Bridges after bridges and tunnels after tunnels. Looking at this project, it seemed that not even Mother Earth could stop the Indian Railways from building this new line. Some iconic displays like the Peer Panjal Railway Tunnel and the unique Chenab Bridge all fall on this line. Chenab Bridge, the world's highest railway bridge, recently completed its arch. Work on the other stretches are also going on in full swing. But among the glory of Chenab, another iconic engineering marvel failed to catch up the attention that it deserves. Construction of this underrated structure was so challenging that the engineers found the Chenab Bridge to be easier than this. It's none other than the Anji Khad Bridge. The Anji Bridge is India's first cable-stayed railway bridge, but that too in an unwanted manner. That's a long story, so let's start explaining. The Anji Khad Bridge is going to rest on a 196 meters deep canyon near Riyasi. Typically, such a height was decided to be joined with an arch bridge, which is similar to the mighty Chenab Bridge. While designing that bridge, something was discovered that became a matter of worry for the engineers. The load of the main span of an arch bridge is evenly distributed on two abutments or foundations settled on the slopes of the mountain. But in case of Anji Khad Bridge, engineers found that the slope of one side of the mountain was extremely unstable to hold the foundation of that arch, making it impossible to build a bridge like Chenab. There is no way in which a pier or a foundation could be built on that slope. Finally, with no choice left in hand, the plan to build the arch bridge was dropped. But something had to be built there. Without the bridge, it was impossible to complete the railway project. Finally, a new plan was made and an asymmetric cable-stayed bridge was proposed. Unlike conventional bridges, the asymmetric cable-stayed bridge was designed to distribute almost the entire load of the bridge on one side of the canyon, just by making a single pylon. As a result, the other slope that was found to be unstable was freed from bearing the load of the foundation. Just a minor abutment was planned to receive the span. This way, the problem was solved and engineers decided to go ahead with the project. Although the Anji Khad Bridge is a cable-stayed bridge, the main span is composed of a long truss and has two levels. The upper level or the deck is 15 meters wide and holds a single broad gauge track, a 3.75 meter wide service road and a pair of walkways along the edge also. The bottom level is 10 meters wide and has a second pair of walkways and cable ducts. Almost the entire bridge will be supported by a 193 meter high concrete tower that looks like an inverted Y. From Anji riverbed, the top of the tower will be a whopping 380 meters high. This tower will directly transfer a permanent load of 4 lakh kilonewton to the layers of rock underneath. This tower will strongly hold the load of the deck with 96 cables. The length of the critical span of the bridge is 473.25 meters, whereas the longest span will be 290 meters. If you add up the approach viaducts, then it counts up to a length of 687 meters. A fabrication unit has been set up on the stable end of the bridge, where large trusses of bridge are being assembled. As the erection of the tower is completed, these trusses will be launched one by one from one end. But we need to wait for a long time, maybe few years, to see the bridge being shaped like its real form.
Although the mighty Chenab Bridge is way ahead, country's dream of joining Kashmir with railways now depends on Anji Bridge. The Indian Railways is spending 458 crores on this bridge. That must have increased due to obvious reasons. As it turns into a reality, trains will clock a maximum speed of 100 kmph there. The structure is strong enough to deal with heavy storms and strong winds as well. Parts of Kashmir's Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link is operational. But this critical 111-kilometer section between Katra and Banihal is now swinging to shape the project into reality. Tunnels after tunnels, bridges after bridges. Such a railway project will definitely become something that India can be proud of. For more videos on India's infrastructure projects, please subscribe to our channel. Also, sharing is caring, so care for your loved ones by sharing this video. Have a nice day. रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है एक मुल्क का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। अगर आप ये कहें कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के एक कंट्री के, तो आप ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ क्योंकि मेरा रेलवे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता रहता हूँ अभी तक। तो कहते हैं जिस मुल्क में रेलवे नहीं है ना, वो समझे आज से 100 साल पीछे है। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर रेलवे अपडेट भी नहीं है ना, वो भी 100 साल पीछे है। बट यहाँ पर आज की वीडियो में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये कि हमें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को चेनाब ब्रिज के बारे में तो पता ही था। अच्छा, स्टार्ट जब हुई वीडियो मुझे लगा कि शायद हम लोग फिर दोबारा से चेनाब ब्रिज के बारे में देखने लगे, बट जिस तरीके से आगे एक नया प्रोजेक्ट आया और बहुत ही कमाल का, और जितने डिटेल से उन्होंने बताया, मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा था। कि एक मतलब अंजी खड़ है ना, अंजी खड़ ब्रिज है जो मतलब जिसके बारे में आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो जो चेनाब ब्रिज था वो ज्यादा लोगों उसके बारे में जानकारी, असल में उसकी जो एक डिजाइन था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था, आर्क टाइप था ना। हाँ, ब्रिज था बिल्कुल। इस वजह से भी वो अपने आप में अलग, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि इंजीनियर्स ने इसको भी बनाया और उनके पास भी सोल्यूशन, हमें लगता है डॉक्टर से ज्यादा इंजीनियर्स के पास सोल्यूशन होता है। देखिए डॉक्टर जो है ना वो एक डिफरेंट इलाज करते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स है ना, मैं वाकई ये बात आज कहने पे मजबूर हूँ कि वो इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं ना कि वो रहती दुनिया तक आप जो हैं उन्हें देख के हैरान होते रहते हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, लगभग वो जो चीजें बनाई हैं वो भी उस टाइम के इंजीनियर्स नहीं बनाई होंगी ना, तो अब हम उन्हें देखते हैं तो हम हैरान होते हैं। तो यही चीजें आज से 100 साल बाद जो बच्चे देखेंगे वो भी जरूर हैरान होंगे एक बार। और ये कितनी मैं कहूँगी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जो पहाड़ों पर आप ब्रिजेस बनाते हैं। अभी रिसेंटली क्योंकि हम लोग भी पहाड़ों से होकर आए, तो हम लोगों को अंदाजा है, क्योंकि हम लोग भी जब रत्ती गली गए थे तो वहां पर भी अर्थक्वेक आया था और बहुत जोर से आवाज आई थी। नहीं आई थी, मुझे नहीं दी आई, लेकिन मैं सुना था। वैसे बेहोश नहीं, असल में मैं और मेरा भाई जो है हम दोनों पैदल चल रहे थे, तो इस वजह से हमें फील नहीं हुआ। लेकिन जो है बाकी जैसे इन्हें भी फील हुआ और बाजियों को भी फील हुआ, कहते ऐसे आवाज थी जैसे जो है लैंड स्लाइडिंग हो गई है। बिल्कुल, मतलब कहने का मेरा ये कि इन सब चीजों को ख्याल रखिए कि कोई तूफान वगैरह, कोई भी ऐसा डिजास्टर जो कि इफेक्ट कर सकता है, उन चीजों को सारा ध्यान में रखकर मटेरियल यूज करना, उसकी मजबूती को, और फिर वो कितने सालों तक जो है वो पायदार रह सकता है। ये सारी चीजें मैं कहती हूँ कि एक इंजीनियर जिस तरीके से एस्टिमेट लगाता है, क्योंकि उसके हाथों में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जान होती है, ठीक है, कि वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं जिस तरीके से। और सीरियसली मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स इतने आसान नहीं है, जैसे कि उन्होंने बीच में बोला भी कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये था कि आई थिंक पैंडेमिक की वजह से में भी या कोई और रीजन जिसकी वजह से डिले हो गया, लेकिन मार्च में ये कंप्लीट हो जाना था। 36 मंथ्स का प्रोजेक्ट था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। बट ये कि अभी जिस तरीके से वीडियो में बताया गया कि काफी ज्यादा टाइम में भी अभी और लगे, क्योंकि ऑब्वियस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। अच्छा, वैसे ये ब्रिज बिल्कुल उसी तरीके का ना जिस तरीके से हम लोग अमूमन बहुत सारे मतलब शहरों में देखते हैं इंडिया के। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कोलकाता में भी अगर देखा जाए, मतलब रोप ब्रिज जिस तरह से वो बनाया गया, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज नहीं, वो हावड़ा ब्रिज तो ऐसे नहीं है। हाँ। अब वो मुंबई का है, सॉरी मुंबई में, मुंबई के सी लिंक जो है वो इस तरह का है कि उस पे जो है स्टील वायर्स लगाई हुई हैं वो होल्ड के लिए। लेकिन मैं वाकई अगर जैसे आपने
कहा कि बहुत सारे लोगों की जो है जान वो जो है एक इंजीनियर के हाथ में होती है, वो जिस तरह डिजाइन करते चीजों को। रेलवे लाइन की बात की जाए तो रेलवे लाइन मैदानी इलाकों में बिछाना फिर भी आसान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे अगर हम लाहौर में बात करें, लाहौर में क्योंकि दरिया रावी से गुजरती है ट्रेन, तो वो अभी भी वही जो अंग्रेज बिछा गए हैं वही पुल है, उससे रिप्लेस नहीं किया गया, वो अभी तक वही चल रहा है। उसके ऊपर जब ट्रेन जाती है तो डर तो लगता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड पहले तेज होती थी, अब बहुत ज्यादा स्लो पे कर दी गई है। तो समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि रावी में अब कौन सा इतना पानी है कि वहां पे नया ब्रिज नहीं बन सकता। आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, रेलवे के लिए ब्रिज जो है वो थोड़ा सा आप एक एक करके बना लें, सीमेंट का बना लें, ना आप लोहे का बनाएं, सीमेंट का वहां पे बना दें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बट नियत होनी चाहिए काम करने का। जिन लोगों की नियत होती है उनके काम नजर भी आ रहे होते हैं। बट ये मैं कहूँगी कि ना बाकी में मौसम की बात ठीक है, मैदानी इलाकों में फिर भी आप रूट आपके लिए मेरा ख्याल में थोड़ा ईजी होगा कंपैरेटिवली, कि आप जब ऐसे पहाड़ों में जाते हो, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही मतलब समझ नहीं आती। अभी जैसे कि हम लोग भी जब कश्मीर से होकर आए हैं तो हम लोगों को पता नहीं चला था, कभी इंडिया के पहाड़ आ जाते थे, कभी पाकिस्तान के पहाड़ आ जाते थे, और पता ही नहीं चलता था कि अभी हम पाकिस्तान में हैं, अभी वो दूसरी सामने हमारे इंडिया चल रहा है। और कभी कभी ऐसा लग रहा होता था कि इंडिया सामने, लेकिन पता चलता था नहीं पाकिस्तान के पहाड़ है। तो वो एक बड़ी ना कॉम्प्लिकेशंस रहती है। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होता है चीजों को इस तरीके से हम आम लोगों के लिए, हाँ नो डाउट इतना उस तरीके से नहीं होता, बट फिर भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ये कि उस इलाके की प्रोग्रेस के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं और उनसे कितनी खुशहाली आएगी, ये देखो ये आने वाले टाइम में हमें बहुत जल्दी नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे जहाँ पे अपने पहाड़ों की बात की, वहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जिन्होंने अगर काम करना हो ना, वो हर चीज का तयन कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये हमारी चीज है, यहाँ पे ये उनकी चीज है। दूसरी ये चीज है कि जब आप रोड्स बना सकते हैं ना, तो आप रेलवे लाइन भी बिछा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी बातें ऐसी हुई थी भाई, रेलवे होनी चाहिए, होनी चाहिए लिटरली, कुछ नहीं कम से कम जो है मुजफ्फराबाद तक तो जो है ना पिंडी से ट्रेन जानी चाहिए, इतना तो होना चाहिए। वैसे मैं अगर बात करूं तो मैं बचपन से ही ये चीज देखता आ रहा हूँ कि बड़ी देर का, तकरीबन कोई 20-21 साल तो हो गए हैं कि ये जो है वो क्या कहते हैं प्रपोज किया हुआ है रेलवे लिंक जो है मुजफ्फराबाद तक का। अच्छा। लेकिन अभी तक मरी तक नहीं पहुंची मुजफ्फराबाद, तो बड़ी दूर की बात है। तो अभी तक कुछ खास वो चेंजेस आई नहीं है, तो मतलब इवन के पाकिस्तान में अगर रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो रेलवे ट्रैक जो है वो जो है पार्टीशन के बाद कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो यहाँ पे बनाई है ना रावलपिंडी स्टेशन से नहीं, बल्कि वो नूर जंक्शन आता है, वहां से लेकर इस्लामाबाद तक रेलवे लाइन बिछाई गई है, बाकी और कोई भी नहीं है। वेल गाइस, ओवरऑल हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ मुझे टनल भी नजर आ रही थी कि जैसे वो ब्रिज कंप्लीट होगा तो फिर टनल शुरू हो जाएगी, और जब वो ब्रिज कंप्लीट होगा टनल आ जाएगी, फिर एक नई वीडियो आएगी, फिर हम लोग देखेंगे, बहुत मजा आएगा। यार सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि चले ब्रिज बन रहा है, टनल बन रही है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। रेल जो है वो एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि 24/7 और 365 डेज अ ईयर रहता है, यानी कि बर्फबारी हो जो मर्जी हो ट्रेन चलती रहती है। जहाज आपके रुक सकते हैं बर्फबारी में, गाड़ियां आपकी जाने से रुक सकती हैं, लेकिन ट्रेन की बात करें ना वो जा सकती है। मौसम देखो, अभी हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेल की सूरत में या फिर वो टनल्स की या मतलब जो भी रोड्स की सूरत में, कनेक्टिविटी इंडिया में काफी अच्छी होती जा रही है। अभी इससे पहले जब हम लोगों ने काफी सारी टनल्स देखी, वहां पर भी क्या होता था 6 महीने जो है वो वेदर जो है वो और तरह का होता था, 6 में कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। तो देखा जाए तो कनेक्टिविटी रखने के लिए बड़ा एक बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए भी बहुत फायदा है। इसके अलावा टूरिज्म पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ऐसे मैं कहूँगी प्रोजेक्ट से। तो आई थिंक आने वाले टाइम में नो डाउट जो हम लोग चीजें देख रहे हैं, आने वाले टाइम में तो कश्मीर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। और भी जो हम लोगों ने वीडियोस देखी वहां पर बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब अच्छा भी लगता है देख करके लोग जो है वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। और एक
हम कहेंगे कि टिपिकल जो एक इमेज बनाई जाती है उस सारी चीजों को उनका खात्मा होगा और लोग जो हैं वो देखेंगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे खुद हैरान होंगे लोग। बट मुझे लगता है कि जब आप काम करते हैं ना तो फिर लोग आपको खुद ही अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं। लोगों के वो जो हम कहेंगे कि वो झूठी दिमाग में वो चीजें बनी होती है यार, असल में जो जाले बने होते हैं ना उन्हें ताड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेशक वो घर हो या कोई भी जगह हो, जाले जो होते हैं ना वो हमेशा दूसरी साइड की चीजें आपको देखने नहीं देते। वैसे मेरे भाई ने बड़ी आज फिलॉसफी झाड़ी, मुझे अच्छा लगा था, अच्छी बात है, मजा आ गया सुन के। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।